Welcome back to your English class, students. Today's topic is poem number 2 from your Flamingo book. The name of the poem is An Elementary School Classroom in a Slum. It is written by Stephen Spender. Let's move further and talk about the poet. Stephen Spender was born on 28 February 1909 and he died on 16th July 1995. He was English poet, novelist and essayist. The main themes of his poems were social injustice and the class struggle. In his work, he reflects these two things. तो अगर थीम की बात करें तो इनकी पोएम्स के थीम क्या होंगे? सोशल इनजस्टिस और क्लास स्ट्रगल. कैसे लोग क्लास के बेसिस पे inferiority और superiority generate करते हैं, that he discusses. तो somewhere this poem can also be about social injustice or class discrimination. Now let's have the introduction of the poem. So in past 1964, American civil rights movement was organized, and in that the major issue was social injustice. So this poem is political voice of Stephen Spender, where he expresses his ideas of the classrooms in slum, where the students are underprivileged and malnourished. इस पोएम में वो डिस्कस करते हैं एक स्लम के क्लासरूम के बारे में, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं इनको प्रिविलेज नहीं मिलता है और वो लोग माल नरिश्ड हैं, कुपोषित. This is the theme of the poem which we'll see after seeing the poem. So let's move to the poem. This is the stanza 1 of the poem. Let us start. The poem starts with the first line, far, far from gusty waves. What does this mean, gusty waves? Far, far from energetic, breezy, fresh wind. So fresh and energetic wind is the gusty waves. So far from this energetic waves, far from this energetic, breezy winds, are these children placed. Which children are these? These children are the children of the slum areas. So these slum area students are depicted here in the poem of Stephen Spender. These are the children. See, if you see these students are undernourished, malnutrition. These hairs are very untidy. They are very lean. See the boy here. Thus, in the second line, Stephen Spender mentions that these children's faces are like rootless weeds. What do you mean by rootless? Which doesn't have any base. And weeds are unwanted grass. So rootless weeds. Who are these rootless weeds? The children in the slum classroom. Also, as you have seen in the picture, he describes the hair of the children. See, the hair of the children are torn around their pallow faces. What do you mean by P-A-L-L-O-R, pallow faces? It means the yellowish face. So now let us see the first two lines. The poet is saying, बहुत दूर, energetic, breezy और fresh air से बहुत दूर हैं ये बच्चे. कौन से बच्चे? ये स्लम एरिया के बच्चे. और ये हैं कैसे? दे आर लाइक रूटलेस वीड. बिना जड़ की जो घासें होती है, अनवांटेड घास होती है, उनकी तरह हैं ये बच्चे. और इनके जो बाल हैं ये बिल्कुल टॉर्न है, अनटाइडी हैं अराउंड देयर पेल, डल पेल फेस. नाउ ही डिस्क्राइब्स पर्टिकुलरली सम स्टूडेंट्स. At first he says about a tall girl with her weighed down head. Here's a tall girl. She is very tall, yet malnourished, and her head is bowed down. Why bowed down? This is bowed down because of poverty, because of the struggle that she is facing in her life, and thus she is feeling shameful and she can't raise her head and can't keep it straight. After that, the poet says, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky hire of twisted bones. Another student is boy with rat's eyes. This is our paper-seeming boy. Paper-seeming means very lean and thin, malnourished boy this is. And his eyes, he says, is like a rat. Why rat? Because this child is undernourished and he is looking for food. जैसे एक rat ढूंढता है इधर उधर खाना, वैसे ये लिफाफे की तरह दिखने वाला बच्चा भी क्या खोज रहा है? खाना खोज रहा है हर जगह.
बार बार सेम स्लाइड पे वापस जाना, इससे बेटर है इफ़ यू पीपल हैव द बुक. सो इफ़ यू हैव द बुक, द नेक्स्ट लाइन इज after the paper seeming boy with rat size, there's a boy who is stunted and unlucky hire of twisted bones. Now the word stunted means not fully grown. So this boy is not fully grown and he is unlucky hire. Hire means जो वंश में पाया हो, जो इनहेरिटेंस में पाया हो. क्या पाया है? कौन सी बीमारी? ट्विस्टेड बोन्स, गठिया का रोग. ट्विस्टेड बोन्स की बीमारी मिली है किसको? इस बच्चे को. एंड अपने डेस्क से ये बच्चा रिसाइड कर रहा है, पढ़ रहा है. और क्या रिसाइड कर रहा है? ना सिर्फ लेसन रिसाइड कर रहा है बल्कि ये दिखा रहा है कि उसके पापा की जो नाल्ड डिजीज़ है, नाल्ड मतलब ये जो गठिया का रोग है, GNARLED, ये जो गठिया का रोग है, ट्विस्टेड बोन्स रिकेट्स, वो दिखा रहा है. और साथ साथ क्या रिसाइड कर रहा है? अपने लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क. And now at last the poet says at the back of the dim class. ये जो डिम सी क्लास है, ये जो लाइटनिंग वाली क्लास नहीं है जहाँ प्रॉपर लाइट भी नहीं है, इस डिम क्लास में एक बहुत स्वीट सा बच्चा, पोएट को ये बच्चा कैसा लगता है? वेरी स्वीट लगता है. कहता है ये स्वीट अननोटेड किड है, नोबडी इज नोटिसिंग दिस किड. एंड दिस किड इज ड्रीमिंग, मे बी ही इज डे ड्रीमिंग. बैठा तो है क्लास में लेकिन क्या कर रहा है? ये सपने देख. एंड ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ स्क्विरल्स गेम. जैसे स्क्विरल खेलती है फ्रीली एक ट्री रूम में. ट्री रूम मतलब ट्री बहुत स्पेशियस होता है. जैसे एक स्क्विरल ट्री रूम में आज़ादी के साथ खेलती है, वैसे ये बच्चा भी ड्रीम कर रहा है ऑफ प्लेइंग स्क्विरल्स गेम इन द ट्री रूम. और लास्ट लाइन लिखा है अदर दैन दिस. अदर दैन दिस मतलब जैसा कि इनका क्लास है, इनका एरिया है छोटा सा, बहुत रेस्ट्रिक्टेड लिमिटेड जगह में, वैसा नहीं. अदर दैन दैट वो स्क्विरल गेम खेलना चाहता है ट्री रूम में. जैसे ट्री रूम स्पेशियस है वैसे स्पेशियस जगह में ये गेम खेलना चाहता है. इन 7 minutes we have just seen the first stanza of the poem. Now we have to speeden up. Once more, let us see the first stanza and here are the meanings. You can write it down, those who don't know. और जो लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो लोग एक बार मीनिंग देख लें. गस्टी वेव्स मतलब ब्रीजी एनर्जेटिक वेव्स. पेलर मतलब पेल येलोइश कलर का डल वेव. स्टंटेड मतलब जो नॉट फुली ग्रोन है. नाल्ड मतलब वही नॉटेड रफ जो आपकी डिजीज़ है ट्विस्टेड बोन्स की, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. वीड्स अनवांटेड ग्रास है. पेपर सीमिंग बॉय मीन्स वेरी थिन बॉय विच लुक्ड लाइक अ शीट ऑफ पेपर. एंड हायर मीन्स समथिंग विच ही गॉट फ्रॉम लाइक जेनेटिक डिसऑर्डर इट वॉज. ये है आपकी लाइन. ये सारी लाइन्स आई एक्सप्लेन्ड इट वेरी क्लियरली. नाउ मूविंग फर्दर विद द सेकेंड स्टैंजा. Please open the stanza in front of you. We'll go with the pictures. You can also note down the meanings from here. Now the poet is depicting the walls of the classroom. See, the wall is of sour color. Sour means जो yellowish color होता है, dirty yellow color. Sour means जब दूध सार हो जाता है, फट जाता है, तो वो कैसा dirty yellow color का होता है. This yellow color is of the wall here. तो of sour cream walls means of the yellowish, dirty yellowish walls. क्या क्या पेस्टेड है? डोनेशंस. पेस्टेड डोनेशंस में मिले हैं और वो सारी लिस्ट है. और इन डोनेशंस में क्या क्या मिले हैं लोगों को? शेक्सपियर की फ़ोटो मिली है, ट्रायलीज वैली की फ़ोटो मिली है. तो हियर्स आर शेक्सपियर, ये है आपका ट्रायलीज वैली, और ये है डोम शेप्ड स्ट्रक्चर्स जिसकी फ़ोटोज़ जो है वो पेस्टेड है. देखिए क्लाउडलेस डॉन, जब पहला चीज़ है शेक्सपियर का है. शेक्सपियर आपको पता है कितने नॉलेजेबल हैं, पर यहाँ इन स्टूडेंट्स को कोई नॉलेज नहीं मिलती है, इसलिए वो भी एक आयन ही है. क्लाउडलेस एट डॉन. यहाँ पर जो एरियाज़ है वो सारे किससे फिल्ड हैं? स्मोक से फिल्ड है, डर्ट से फिल्ड है. उल्टा यहाँ पर जो फ़ोटो लगी है वो कैसी है? क्लाउडलेस स्काई, बिना क्लाउड, बिना धुंध के जो स्काई सुबह होती है डॉन में, वैसी स्काई की फ़ोटो लगी है. अगेन विच इज़ ऑपोजिट टू द स्टूडेंट्स ऑफ द स्लम. स्लम एरिया के ऑपोजिट है जहाँ पर ये स्टूडेंट्स रहते हैं. फिर सिविलाइज्ड डोम की फ़ोटो लगी है. सिविलाइज्ड मतलब जहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं, सिविलाइज्ड पीपल रहते हैं, वहाँ के डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स की फ़ोटो लगी है, वो भी जो है ऑपोजिट है. उसके बाद फ़ोटो लगी है बेल्ड फ्लावरी ट्रायलीज वैली की, जो कि फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल है, वो भी ऑपोजिट है दैन द एरिया ऑफ द स्लम. स्लम का एरिया बिल्कुल ही ब्यूटीफुल नहीं था. फिर ट्रायलीज वैली के बाद एक ओपन हैंडेड मैप की फ़ोटो लगी है.
ओपन हैंडेड मतलब नॉट टू मेजर स्केल से नहीं बना है, बट एक मैप की फ़ोटो लगी है जिसमें वो वर्ल्ड दिखाया है जो वर्ल्ड एक्चुअली इनका नहीं है। ये जो दुनिया में मैप्स पे दिखाई जाती है, इंटरनेट्स पे दिखाई जाती है, वो स्लम एरियाज़ को कभी नहीं दिखाता है। तो इसलिए पोएट फिर से नाराज़ हैं कि आप इनको वो वर्ल्ड दिखा रहे हैं, वर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। आप इस दुनिया को वो दुनिया दिखा रहे हैं जो एक्चुअली उनकी होनी चाहिए थी पर उनकी है नहीं। तो आप क्यों वो दुनिया दिखा रहे हैं उनको, क्यों गलत कामों के लिए उनको उकसा रहे हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे हाउ पोएट सेज कि ये सारी चीज़ें जो हमने अभी देखी, शेक्सपियर का हेड, क्लाउडलेस स्काई, सिविलाइज्ड डोम और ये ट्रायलीज वैली और आपका ओपन हैंडेड मैप, ये बैड एग्जाम्पल हैं। और कहते हैं इन बच्चों के लिए ये जो विंडोज़ हैं, ये जो वर्ल्ड है, ये एक्चुअली कुछ नहीं है। इस विंडो से वो एस्केप करके एक बेटर दुनिया में नहीं जा सकते, ना इस वर्ल्ड मैप को देखकर वो जा सकते हैं किसी बेटर वर्ल्ड में। सो फॉर दिस चिल्ड्रेन ऑल दीज विंडोज़ नॉट दिस वर्ल्ड आर वर्ल्ड। ये वर्ल्ड उनके लिए वर्ल्ड नहीं है और ये जो विंडो है ये कोई एस्केप नहीं ले जाएगा उनको। क्यों? क्योंकि ये जो विंडो से बाहर जाएंगे वहाँ पर इनका पूरा फ्यूचर जो है पेंटेड है विद फॉग, विद स्मोक। आपको पता है स्लम एरियाज फैक्ट्रीज़ के बगल में लोकेटेड होते हैं जहाँ पर बहुत स्मोक होता है, डर्ट होता है। तो उनका जो इस विंडो के बाहर जो वर्ल्ड है वो ये वर्ल्ड नहीं है। उनका जो वर्ल्ड है दैट इज़ फिल्ड विद स्मोक, और उन स्मोकी लेन्स पे ये लोग जाकर क्या करेंगे। ये है इनकी नैरो स्ट्रीट्स जो कि फिल्ड है विद लेड स्काई। लेड स्काई मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डर्ट से भरा है उनका ये जो आसमान है, वो कवर्ड है, वो फॉग से कवर्ड है, वो लेड की तरह है जहाँ पर वो खुला आसमान, साफ आसमान नहीं देख सकते हैं। क्योंकि इनका जो एरिया है वो कहाँ लोकेटेड है, इट्स फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स, केप्स मतलब जो माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं, एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स। और जो स्टारी वर्ल्ड है, जो स्टारी दुनिया है जहाँ पर लोग क्लियर स्काई दिखते हैं, वैसा कुछ भी इनका वर्ल्ड नहीं है। इनका वर्ल्ड ऐसे फॉगी स्ट्रीट से भरा हुआ है, डर्ट से भरा हुआ है। इनके पास कोई चांस नहीं है बेटरमेंट का। तो ये है आपका सेकेंड स्टैंजा। लेट्स सी वंस। कहते हैं सार क्रीम वॉल पे डोनेशंस में मिला है लोगों को। शेक्सपियर का हेड पेस्टेड है, क्लाउडलेस स्काई है जो कि सुबह डॉन के समय के है, जो कि क्लियर है। क्यों है ये सब क्लियर? क्योंकि यहाँ पर जो स्लम एरियाज़ में बच्चे हैं यहाँ पर नथिंग इज़ क्लियर। सिविलाइज्ड डोम की फ़ोटो लगी है, मतलब जहाँ पे सिविलाइज्ड लोग रहते हैं वहाँ की बिल्डिंग्स की फ़ोटोज़ लगी है जो कि ऑल सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। बेल्ड और फ्लावरी ट्रायलीज वैली की फ़ोटो लगी है। ओपन हैंडेड मैप लगा है। और ये सब इस दुनिया को वो दुनिया अवॉर्ड करी है जहाँ पे वो लोग नहीं जा सकते, जो कि उसी दुनिया में रहते हैं, बट उनकी दुनिया एक्चुअली बहुत अलग है। और कहते हैं येट फॉर दिस चिल्ड्रेन दिस विंडोज़ नॉट दिस वर्ल्ड देयर मैप। ये जो मैप है वो उनका वर्ल्ड नहीं है। ये जो विंडोज़ हैं इसके बाहर इनका फ्यूचर जो है पेंटेड विद फॉग है। इनकी जो स्ट्रीट्स है वो नैरो है एंड इट्स सील्ड इन विद लेड स्काई। वो जो लेड डार्क फ्यूचर, लेड स्काई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डार्क फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये खुला आसमान नहीं देखते, खुली रोशनी नहीं आती है, क्योंकि फॉग और डर्ट से पूरा एरिया कवर्ड है। और ये फिर से बता रहे हैं कि इट इज़ फार फार फ्रॉम जो क्लियर रिवर्स है, केप्स है, माउंटेन पीक्स है, स्टारी स्काई है, इन सब से बहुत दूर है ये बच्चे और इनका फ्यूचर। These are the meanings you can write down. Moving to the third stanza. Poet says for these students Shakespeare is wicked. The map is a bad example. Shakespeare cunning है, wicked है, गलत है। मैप जो है वो bad example है। और जो आप फोटोज़ दिखा रहे हैं जहाँ पे शिप्स हैं, जहाँ पे क्लियर सन है, जहाँ पे लोग लिव लविंगली, these all things are tempting the students to steal. क्यों? क्योंकि वो लोग अगर ऐसी दुनिया में जाना चाहते हैं या अपनी दुनिया को ऐसा बनाना चाहते हैं तो एक तो आप उनको एजुकेशन नहीं दे रहे हैं प्रॉपर। अगर आप उनको सही एजुकेशन देते तो शायद वो अपनी पढ़ाई से ये सब चीज़ें पा सकते थे। अब आप पढ़ाई भी नहीं सही दे रहे हैं और उनको ये चीज़ें दिखाएंगे तो बच्चे ये सब के लिए क्या करेंगे? दे वुड स्टील। Thus शेक्सपियर विकेड और मैप जो है वो बैड एग्जाम्पल है। कहते हैं फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली टर्न्ड इन देयर क्रैम्ड होल फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। कह रहे हैं कि ऐसी ज़िंदगी वो जी रहे हैं उसको टर्न कैसे करेंगे? जो लाइफ वो क्रैम्ड होल में जी रहे हैं, क्रैम्ड होल मतलब जो कन्फाइंड छोटा सा होल है जिसमें वो रह रहे हैं, मतलब इनके स्लम एरिया को क्रैम्ड होल कहा गया। एक छोटा सा होल, छोटी सी जगह जहाँ पर उनका जो दिन है वो फॉग से शुरू होता है और पूरा दिन ही एंडलेस नाइट की तरह है। तो कह रहे हैं कि
उनका प्रेजेंट जो है वो धुंध है, नॉट श्योर है, फॉग की तरह है, और उनका जो फ्यूचर है वो डार्क है, एंडलेस नाइट की तरह। तो कह रहे हैं बच्चे इस वाली लाइफ को कन्वर्ट करेंगे, स्लाइली कन्वर्ट करेंगे, स्लाइली मतलब डिसीटफुली, रॉन्ग वेज के थ्रू कन्वर्ट करेंगे। कौन सी लाइफ? जो लाइफ वो क्रैम्ड होल में जी रहे हैं, जहाँ पे वो फॉग टू एंडलेस नाइट जी रहे हैं, उस लाइफ को वो अच्छी लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? स्लाइली मेथड्स यूज़ करेंगे, डिसीटफुल मेथड्स यूज़ करेंगे, स्टील करेंगे, गलत रास्ते चुनेंगे। So this Shakespeare and this map is a bad example for this students। ये लोग नेगेटिव इन्फ्लुएंस देंगे बच्चों को, और ये है उनके crammed holes, जो डर्टी लेन्स है जहाँ पर वो अनक्लियर फ्रॉम फॉग मतलब अनक्लियर प्रेजेंट से लेकर एंडलेस नाइट मतलब डार्क फ्यूचर से कवर्ड है। इसको चेंज करने के लिए वो स्लाई मेथड्स यूज़ करेंगे। दे स्लाइली डिसीटफुली टर्न देयर लाइव्स बाय स्टीलिंग और रॉबिंग और डिकॉइटिंग बाय डूइंग अनफेयर थिंग्स। क्योंकि इनके देखिए अगला लाइन में लिखा है ऑन देयर स्लैग हीप। स्लैग मतलब ये देखिए कैसे कूड़े का हीप जो है इनके एरियाज में पड़ा होता है। और यहाँ पे जो बच्चे हैं दिस चिल्ड्रन वेयर स्किन, और उनके जो स्किन है, चमड़ी है, दैट इज पीपिंग थ्रू बाई बोन्स। और स्किन के थ्रू क्या पीप कर रहा है, क्या झांकने की कोशिश कर रहा है? बोन्स झांकने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। इवन जो स्पेक्टिकल्स कुछ बच्चे पहने हैं वो भी स्टील फ्रेम के हैं, और उसमें जो ग्लास लगाए गए हैं वो मेंडेड ग्लास है, मतलब टूटे हुए ग्लास को चिपका के एक शीशा बनाया गया है। जैसे लगता है कि लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे स्टोन पे बॉटल के टूटे हुए टुकड़े पड़े हुए हैं, वैसे ही इस स्टील फ्रेम में इन बच्चों का चश्मा लगता है। अगर किसी को गलती से ग्लास की ज़रूरत है तो वो कैसा ग्लास पहनेंगे? विच ग्लास इज मेड अप ऑफ क्रैक्ड ग्लासेस। और कहते हैं कि उनका जो पूरा टाइम है, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। ये जो फॉगी धुंध से भरा स्लम है वही उनका स्पेस और टाइम है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम्स। तो कह रहा है कि जो एक्चुअली मैप हैं उन मैप्स को ब्लॉट करो। ब्लॉट करना मतलब धब्बा डालना। उन मैप्स पे धब्बा डालिए विथ स्लम्स। जो आप क्लियर मैप बनाते हैं और दिखाते हैं कि दुनिया इतनी अच्छी है, नहीं, उसको ब्लॉट करिए, उस पर धब्बा डालिए। और उस धब्बा किस चीज़ से धब्बा डालना है? स्लम को प्लेस करिए, और वो स्लम इतने बिग दिखने चाहिए जैसे डूम्स, जैसे डिज़ास्टर होते हैं, जैसे विनाश होता है, उस रूप में जो आपका ये सिविलाइज्ड वाला मैप है उस पे स्लम एरियाज़ को दिखाइए। बिकॉज दिस स्लम एरियाज़ आर एक्चुअली व्हाट? डिज़ास्टर टू द मैनकाइंड। Now, the last stanza of the poem tells how the poet is requesting, expecting his tone suddenly changes and he says, unless जब तक governor, teachers और visitors इस मैप के थ्रू विंडोज़ ना बनाएं, उनको एड्रेस करते हुए कहते हैं कि ये मैप के थ्रू विंडोज़ बनाइए इन बच्चों का। और आप जब मैप पे दिखाएंगे, ब्लॉट करेंगे मैप पे दिखाएंगे कि स्लम एरियाज़ में इतनी गंदी हालत है, तो ये विंडो बनेंगे दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स। ये जो विंडोज़ हैं, ये जो विंडोज़ हैं जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, जिससे इनकी लाइफ कैटाकॉम्स सिमेट्री की तरह, जैसे सिमेट्री क्या होता है? जहाँ पर किसी को बरी किया जाता है, बुरियल ग्राउंड की तरह, जैसे इनका कैटाकॉम्स की तरह जिस जगह वो लोग रह रहे हैं, जिन विंडोज़ के थ्रू वो जी रहे हैं, वो विंडोज़ चेंज हो गए और उनको क्या मिलेगा? सही जगह मिलेगी, सही प्लेस मिलेगी, एक रियल वर्ल्ड मिलेगा जहाँ पे ये लोग रहेंगे। तो ये आपकी सेकेंड एंड थर्ड लाइन है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। यही मैप बनेगा उनका विंडो जब आप ब्लॉट करेंगे मैप, और उसी विंडो के थ्रू ये लोग ये वाली लाइफ जो कैटाकॉम्स की तरह लाइफ जी रहे हैं उसको शट करेंगे, उसको बंद करेंगे। ये लाइफ जो वो लोग एक मुर्दे घर की तरह में रह रहे हैं, वो लाइफ से इन लोग को आज़ादी मिलेगी। और जो पोएट है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। और कहते हैं कि ब्रेक दीज विंडोज़, ब्रेक ओपन कब तक? टिल दे ब्रेक द टाउन, तब तक अपनी आवाज़ें उठाओ, इन विंडोज़ को तोड़ो, इन रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ो, जब तक तुम सही टाउन पे ना पहुंच जाओ, सही जगह जहाँ पे एक्चुअली सिविलाइज्ड लोग रहते हैं, नीट क्लीन टाउन पे जब तक नहीं पहुंच जाओ। और कहते हैं कि इन बच्चों को दिखाओ, क्या दिखाओ? एक्चुअली वर्ल्ड क्या है, वो ग्रीन फील्ड्स दिखाओ, उनको दिखाओ कि उनका जो वर्ल्ड है इट कैन रन अज्योर, इट कैन रन वेरी ब्यूटिफुली। अज्योर मीन्स ये जो क्लियर स्काई है और उसके नीचे जो गोल्डन सैंड है,
उस पे ये बच्चे दौड़े इस ग्रीन फील्ड में, ब्लू स्काई में। यहाँ पे तो स्काई नहीं दिखती है उनको, लेड स्काई है, तो ब्लू स्काई, रन अज्योर, अज्योर मीन्स दिस ब्लू स्काई और गोल्ड सैंड, ये जो क्लियर फर्श, जो क्लियर फ्लोर है उस पे ये लोग जाएं। और कहते हैं और उनकी भाषा की किताबें लिखिए, जो किताबें उनको मिले जिसमें वाइट और ग्रीन लीव्स के पेजेस बने हों। क्यों? क्योंकि डर्टी पेजेस पे उनका पढ़ने का नहीं मन करेगा, तो उनकी भाषा में किताबें लिखिए। लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक, रन ओपन इनटू बुक्स, क्योंकि अगर भाषा अपनी पढ़ेंगे तभी वो लोग पढ़ के सीख पाएंगे। दूसरों की भाषा पढ़ा के, शेक्सपियर की लाइफ पढ़ा के आप क्या करेंगे जब वो उनकी लाइफ है ही नहीं। इनकी लाइफ के थ्रू जहाँ पर इनका लेवल है उस लेवल से बुक्स लिखी जाए। और पोएट कहते हैं हिस्ट्री इज देयर्स हुज लैंग्वेज इज सन, क्योंकि जैसे सन है जब वो स्काई में शाइन करता है तो कोई और नहीं दिखता, वैसे इन बच्चों को भी सन बनना पड़ेगा। और सन बनेंगे कब? जब ये अपनी लैंग्वेज में अपने स्तर से पढ़े लिखेंगे, जब ये अपनी भाषा में बोल पाएंगे और इनकी भाषा का भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन होगा, तभी ये बच्चे इतिहास बना पाएंगे। तो ये गवर्नर्स, पोएट्स, इंस्पेक्टर सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन बच्चों को ये नेचुरल ग्रीन स्काई दिखाई, ब्लू स्काई दिखाइए जहाँ पर ग्रीन फील्ड्स हैं और गोल्डन सैंड है, क्लियर एयर है। नाउ द पोएटिक डिवाइसेस, दीज आर द मेटाफर्स। गस्टी वेव्स मतलब एनर्जेटिक वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो प्रिविलेज चाइल्ड हैं उनको गस्टी वेव्स बोला गया है क्योंकि वो एनर्जेटिक हैं, वो फ्रेश हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं। उल्टा ये बच्चे उसका ऑपोजिट हैं। फ्यूचर्स पेंटेड with fog, it refers to the future of the slum children। जो slum children का फ्यूचर है वो फॉग की तरह मतलब अनसर्टेन और अनक्लियर है। फिर sealed in a lead sky, sealed in with a lead sky मतलब जो डार्क और ग्रे कलर का स्काई है उसको लेड स्काई बोला गया है क्योंकि इनका फ्यूचर डिप्रेसिंग है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है। स्टार ऑफ वर्ड्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे कि स्टार्स है, पोएट यूज़ कर रहा है इसको ऐसा क्रिएट करने के लिए। स्टार्स क्या है? वो जो लैंग्वेज जो अच्छे राइटर्स लिखते हैं उसको बोला गया है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट रेफर कर रहा है कि कैसे रे ऑफ होप नहीं है कहीं और इनकी सिचुएशन आज बैड है, कल और वर्स हो जाएगी। रेयर स्किन पीप थ्रू बाय बोन, ये भी एक तरह का कंपैरिजन है जहाँ पे वो बता रहे हैं कि दिस चिल्ड्रन आर माल नरिश्ड, इनके पास मसल्स नहीं है, इनके पास स्किन है और स्किन के थ्रू बोन्स दिख रहे हैं। लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक मतलब रिफर्स टू द एक्ट ऑफ अलाउिंग द स्टूडेंट्स टू गो एंड टेस्ट द वेराइटी ऑफ बुक्स जो एक्चुअली है इस वर्ल्ड में। उनको लैंग्वेज सिखाइए, उनकी लैंग्वेज में बुक्स ला कर दीजिए और इस कन्फाइंड स्लम से बाहर निकालिए। हुज लैंग्वेज इज़ द सन रिफर्स टू द चिल्ड्रन हु लिव इन प्रेजेंट सराउंडिंग। तो जिन बच्चों को वहाँ पर आप क्लियर स्काई में रख रहे हैं, जिनकी लैंग्वेज में आप पढ़ा रहे हैं, वो सन की तरह शाइन कर रहे हैं और ये बच्चे इनका कोई फ्यूचर नहीं है। आपको बताया गया है पहले सिमिली, जहाँ भी एज और लाइक यूज़ हो वो सिमिली होता है। तो यहाँ पर लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन और विंडोज़ दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स, ये सारी सिमिली है। नेक्स्ट पन, रिसाइटिंग, ये लिटरल पन है जो फिगरेटिव दिखा रहा है कैसे वो पढ़ रहा है और रिसाइट कर रहा है अपने फादर की जो इनहेरिटेड डिजीज़ है उसको डिसम्बल कर रहा है। सार क्रीम अगेन वो लिटरल है, फिगरेटिव डर्टी येलो वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेड स्काई लिटरल है। अगर आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एक बार बोल दीजिएगा। लेड स्काई भी लिटरल है जो कि स्काई को बता रहा है जो अपॉर्चुनिटी, जो एरिया है वो कवर्ड है डर्ट और डस्ट से। इमेजरी आपको वेट डाउन हेड है, वो इमेज क्रिएट करेगा कि कैसे पॉवर्टी और होपलेसनेस से उस बच्ची का जो है वेट झुका हुआ है सर। रिपीटिशन ब्रेक और ब्रेक में ब्रेक ब्रेक और ब्रेक रिपीटेड है और फार फार बार बार रिपीटेड है। दिस इज़ द समरी, यू कैन गो थ्रू द समरी। पॉज द वीडियो हियर, राइट, पॉज द वीडियो हियर, राइट, पॉज द वीडियो हियर, राइट। And these are some questions to be discussed. Question answer के लिए एक separate video would be created. Go through the video. That's all. Thank you.